Recently, I heard me and Elvish getting married. जो कहते प्रेग्नेंट है नहीं प्रेग्नेंट है यही पता नहीं 3 साल से रट लगाई हुई है। इतनी लंबी कौन सी प्रेगनेंसी होती है? But I think I would dedicate this song to विशाल पांडे। No, legit, मैंने पूरे शो में उसको बोला मुझे पैम्पर कर, मेरी तारीफ कर, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। So I think मैंने पूरा सीजन उसे यही बोला। अरे बेस्ट फ्रेंड था नहीं? नहीं, but he is my best friend. But that best friend best. मैं कहती प्लीज आज मुझे तो कॉम्प्लीमेंट कर, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो आई एम दैट पर्सन जो मांग के लेती है। तो आई वांट टू डेडिकेट दैट सॉन्ग कि भाई तू अभी दिल से बोल मुझे काला माल। जब ऐसी बात कोई नेहू के मतलब नेहू के लिए होती है या कुछ होता है, ठीक है, एक तरफ मेरे को बुरा लगता है, बट मेरा फर्ज है कि उसे मतलब वो उस तक वो चीज़ ना पहुँचे कि वो बुरा फील करे। मैं फिर नहीं यार दफा कर चक के रख बस तू काम ओके है, गुड है, सब बढ़िया। Somewhere my fights with a particular person, I would say me disrespecting because that's not me. But in that show you have to give back. I'm not here to listen something from you, right? तो वो शो पे आपको मैं से किसी का सुन के नहीं लूँगी। You're not running my house. अगर तो दिखावा होगा ना वो आप 1 साल कर लोगे 2 साल कर लोगे, ताउम्र नहीं कर सकते आप। वो दिखावा कभी ना कभी आपका सामने ही आ जाएगा। जब आप रियल हो जब फिर तो आपको किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होगा ना। जब आप रियल हो, वो दिखावा होगा तो असर हो जाएगा। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. My guests today are so talented, so musical and so fun. कुछ collaborations ऐसी हो जो unexpected होती है पर बड़े ही interesting होते हैं. Of course, I'm talking about a collaboration between the two fantastic artists, Sana Maqbool and Rohan Preet. Welcome to the show. Thank you. But सही बात है, very unexpected, isn't it? Why did you choose the title that you chose? Sounds मतलब अच्छा करता है, वो साउंड बड़ा अच्छा करता है, काला माल। And is the way you say it, काला माल? हाँ, हम और भी सोच रहे थे बट आई थिंक हम सभी को ये बेटर लगा कि फिर हम इसी पे स्टिक कर गए कि let's just keep this. What do you think about the unexpected collaborations and the title itself? I think the unexpected collaboration with him, I would say it's fun. But the title is so intrigued that there are many meanings to Kala Mal. Many meanings. You explain what you think. Anything. How would you? You are a part of the. I could call myself a Kamal rather than calling Kala Mal. Oh, like that. So yeah, see there are different meanings. It's just how you take it, how you आपके दिमाग में क्या चल रहा है. It's just a humor what we've added. काला माल it's like it's a vibe ना, the song is the vibe. बढ़िया vibe बहुत घैंट है इस song दी. Like he said, the vibe with a lot of videos match. You know, you will have a certain setup, but I think the interesting part is to think as artists कि क्या नया कर सकते हैं इसमें. So tell me, वो idea formation कैसे हुआ? And then of course thinking of why should we get Sana or why should how do you all come together? Tell us about that. मेरे को लगता है जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है बेसिकली वीडियो का, वो तो खैर बी टुगेदर्स नहीं बनाया है, उनका ही वो एक थॉट था कि इसको मतलब ऐसा शूट करते हैं या ऐसा कुछ जो भी है। और सना ऑफ कोर्स क्यों नहीं लेंगे, इतनी खूबसूरत लड़की है और बिग बॉस में अभी जीत के आई है, इतनी कमाल। और बेसिकली जब मैं मिला इनसे, ह्यूमन बीइंग बहुत कमाल है, ये बहुत ही काइंड ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही ग्राउंडेड है और फन लविंग है, बहुत ही मतलब अच्छे। तब तक तो मिला नहीं था, लेकिन एक जब बिग बॉस में हम देखते थे तो हम सभी को ही लाइक मेरे को, नेहू को, टोनी भाई को, टोनी जूनियर को, सभी को ही बड़ा अच्छा पॉजिटिव लगता था इनको देख के। और व्हाई नॉट? Sana is like, except some, most people think I'm positive. है ना Sana? No, not like that. I think for me, मैं खुद अपने आप में एक positive रहती हूँ. You know, however you call it, but I like to be positive. And I think when two people attract, like him, he's also very positive, very very positive. मैं जब first time इनसे मिली थी, he had that attitude, like that energy, that vibe, it's so positive. Vibrations होते हैं ना, I'm a very vibe person. और मुझे इनकी vibe इतनी अच्छी लगी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं, he's Rohan Preet और इनका गाना है, he never had that thing. एक बहुत अपनापन जैसा लगा. And more than anything, I think एक artist, he's an singer है and he's in the video. He never made me feel that I'm not vibing to it या मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो उन्होंने कभी मुझे वो खिचखिचाहट एक होती है ना, वो कभी महसूस होने नहीं दी. Like he made me feel relaxed on the set and he was like, relax, समझ ले,
तू वाइब इजीली कर लेगी, यू नो। तो मुझे मीनिंग समझाया, मुझे उसका इम्पोर्टेंस समझाया कि हर एक वर्ड के पीछे इसका मतलब ये होता है इन हिंदी, यू नो। एंड फॉर मी आई थिंक दैट वाज इजी, एंड हिम बीइंग सो हेल्पफुल, लाइक that's very rare. No, that is true. But he described you in a very sweet way, right? He said when they watched you on TV, हम सबको लगा कि एक बहुत positive सा वो है. So and it's also about nazariya. A lot of people felt that about you, right? When they watched Yes. you, that some felt you're being fake, while some felt this is her, right? This is me. This is you. So tell me today, after all of that comes, when you come outside that house, जहाँ पे आपने इतना time spend किया, and then you know you meet people who don't know you, come and give you opinions that are very different from how you perceive yourself. How did you deal with all of that? See, opinions, I think I have और वो always... तो सोशल मीडिया में भी चल सोशल रहा है. मीडिया की भी बात करूँ या पर्सनली भी ओपिनियंस की बात करूँ, I've got positive response from people. तो वो एक बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग आपको जानते नहीं है वो आपको समझ रहे हैं. I liked it. I mean, I've been liking it, you know. कि people are coming up to me, and especially women. There are a lot of women. I've gained fan following from a lot of women. They come to say, अरे आपने कितना अच्छा किया, कैसे? So ये मेरे लिए बहुत बहुत important. You know, it gives me a lot of importance in my life कि यार सना कुछ तो अच्छा किया है. So जो मुझे जानते हैं, they know how am I. Am I being fake? No. They till date people I have won and I've come. My friends are saying, "अरे तू जीत के आई है." Yeah. You know, and I'm still that grounded person. For me, that's a trophy that's there. Yeah. You know, I always wore an invisible crown on top of my head. Today, the only difference is I wear that BB winner wala crown on my head, but I always had that crown, chin high, no matter what. But I think that is very, very inspiring, right? क्योंकि I mean that kind of self-confidence, if only every woman woke up with, यार Trust life ही अलग होती. Trust me. But I think Sana, that's wonderful because you know amongst all that negativity that you had to live with, which is very interesting when he said that you're so positive, अगर खुद में विश्वास ना हो तो वो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, because there were a lot of, you know, they threw such allegations that you've not heard. You know, of course you had so many fights. Do you think back about it? Do you regret anything? No. And would you change anything? No, but I think somewhere my fights with a particular person, I would say me disrespecting, because that's not me. But in that show, you have to give back. I'm not here to listen something from you, right? तो वो show पे आपको मैं किसी का सुन के नहीं लूँगी. You're not running my house. आप अगर मुझे कोई चीज़ बोल रहे हो तो जहाँ मुझे सही लगा है मैंने सुन के लिया है, बट जहाँ मुझे गलत लगा है गिवन बैक, irrespective of who you are or what you are. I'm not going to listen. In general, in personal life also, if you meet me outside that show also, if I feel it's wrong, I will speak, no matter what. And as you said कि हमारी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है अगर हम अपने आप से प्यार करें तो. And today one thing I've noticed, a man like him who keeps the women first and then him, I think we need more men like him. Rohan Preet को मैं सुबह से, you know, we've been giving interviews and I have been loving the attitude he has towards his wife. Like, you know, he keeps his wife above everything. And I think we need more men like that in our society to uplift feminism, to uplift women. We need that. I love that. We really need that. No, 100%. And because you mentioned that, I must say, you know, रोहनप्रीत, आई थिंक मुझे लगता है इस अब तो 3 साल हो गए आपकी शादी के, पर काफ़ी सारे टाइम जब आप वीडियोस डालते हो या पोस्ट डालते हो तो एक बहुत कॉमन सा एक मैसेज आता है कि यार दिस इज़, यू नो, लुक एट द वे ही रियली चीयर्स फॉर हिज वाइफ, ही इज़ सो सिक्योर एज अ मैन. और वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बट बहुत ज़्यादा दिखते भी नहीं है. देयर इज़ अगेन द अदर साइड वेयर यू डोंट सी इट. मुझे लगता है वो, जैसे कि उन्होंने राइटली कहा कि दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट. How do you look at this 3 years of beautiful relationship that you have been, you know, been able to, you know, balance and the way you are? I think मेरे को ये लगता है कि एक तो इन्हें blessings समझना चाहिए इन सब चीज़ों को, कि जो आपकी लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है या आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, तो मतलब दोनों को blessings समझना चाहिए कि बेसिकली 2 bodies 1 soul होगी अभी वो आफ्टर द मैरिज, ये ऐसा हो जाता है. और हर एक दिन जब आप उठते हो एक दूसरे का चेहरा देखते हो, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार कि हाँ अब अच्छी होने लगी यार मेरी सुबह,
तो फिर मेरे को लगता है कि कभी वो चीज़ें आएंगी ही नहीं आपके मन में, और वो बैलेंस्ड ही रहेगा हमेशा। और जब एक दूसरे के साथ आप एज अ फ्रेंड बिहेव करोगे ना, मतलब हस्बैंड वाइफ को छोड़ के भी, हाँ यार तू मेरा पहला दोस्त था, भी तू मेरा पहला यार है ना, भी मैं तेरे नाल अपनी जो मैं किसी के साथ नहीं बात शेयर कर सकता वो मैं तेरे साथ कर सकता हूँ, और वाइस वर्सा, मतलब अगले बंदे को भी सेम होना चाहिए कि हाँ यार भी तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा दोस्त है, भी मेरे को पता कि मैं तेरे साथ किसी भी तरीके की बात शेयर कर सकता हूँ। तो वो एक रिलेशन को वो बैलेंस करके रखता है कि हाँ चल ठीक है, जब जहाँ पे हस्बैंड ड्यूटीज़ करनी है वो कर रहे हैं, बट जब कभी हस्बैंड कर रहा है कि नहीं यार भी मेरे को मेरा फ्रेंड चाहिए, कि तू अभी मेरी वाइफ मत बन, अब तू मेरा फ्रेंड बन के आगे मेरे साथ बात कर। तो फिर जब ये ऐसा जब रिलेशनशिप होने लग जाता है ना, तो फिर सब बैलेंस्ड ही रहता है, सब ऐसा लगता है कि हाँ यार ये ब्लेसिंग्स हैं यार, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। पर सना की तरह आप भी आपने भी काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन क्योंकि आप लोग की लाइफ में भी इतने सारे रूमर्स आते रहते हैं, राइट? सो आई थिंक दैट इज व्हाई दे कीप सेइंग ओ दे आर हैविंग अ डिवोर्स और दे आर हैविंग अ बेबी, सब प्रेडिक्शंस हो रहे होते हैं। पर उन्हीं आजकल एक्चुअली ना, सॉरी आई एम जी, कटिंग जी। यू, मेरे को लगता है कि आजकल ये बहुत ना, ये व्यूज़ पे बहुत मैटर करती हैं ये सब चीज़ें, ये सब लगता है उनको कि ये सब करके व्यूज़ मिल जाएंगे या कुछ, और मैं अभी सुबह से ये बोल रहा हूँ कि शायद उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये कुछ ऐसा वो नेगेटिव लिखते हैं किसी के बारे में, तो उनको लगता है लिख के यार हाँ मज़ा आ गया यार, भी मैंने इसको ऐसे गाली दे दी, या मैंने इसके बारे में ये लिख दिया, गलत लिख दिया, मज़ा आ गया यार। तो शायद उनको वो सब चीज़ें करके खुशी मिल रही है, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल खुशी है क्या। बट ठीक है, अगर उनको वैसे खुशी मिल रही है तो कर लेना चाहिए। हम बंदे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसके बारे में वो लिख रहे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जस्ट ठीक है लिख दिया, ठीक है, लिखता लिखता की हो गया, अगला खुश हो गया ना, दैट्स इट, एंजॉय करो। और मेरा सवाल उसी डायरेक्शन में था कि पर खुद को उस वक्त जब लोग ऐसे लिख रहे होते, एक थिक स्किन होके खुद को ये बिलीव करना कि मेरा तो सब कुछ सही है भी मुश्किल होता है। कभी कभी गुस्सा आपको, क्योंकि आप लोग के बारे में इतना लिखा गया है, देखो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं ऑफ कोर्स, पर कभी कभी लिखा था अरे ये तो मतलब दिखावा है, ये तो एक वो है। आप हाउ डू यू काइंड ऑफ रिमेन पॉजिटिव अमंग दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन। नहीं मैम देखो, अगर तो दिखावा होगा ना, वो आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, ताउम्र नहीं कर सकते आप। वो दिखावा कभी ना कभी आपका सामने ही आ जाएगा। जब आप रियल हो, जब फिर तो आपको किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होगा ना। जब आप रियल हो, वो दिखावा होगा तो असर हो जाएगा। अब आप रियल हो तो वो ताउम्र ऐसे ही रहोगे आप। और हाँ ठीक है, बस नहीं बोलता है, ज़्यादा बोलता नहीं मैं। नहीं बोलिए, आई थिंक आपको एक प्लेट में ना दो चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं, नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी सेम टाइम। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है, उसमें से क्या उठाना है जी। आप नेगेटिविटी चूज करोगे तो फिर ऑफ कोर्स चीज़ें सारी नेगेटिव ही होंगी। पॉजिटिविटी उठाओगे तो ठीक है, फिर वो चीज़ें भी ऐसे लगता है यार चल ठीक है कोई चक्कर नहीं है, भी अगले ने कहता कोई चक्कर नहीं। सना completely of course understands this statement, but because we're talking about this, और आप जैसे हमने शुरुआत भी की ना, you are this total cheerleader right, कि अपने वाइफ के लिए कि यार ये बड़ी सही है, ये अच्छा काम कर रही है हमेशा से। जब आपके वाइफ को क्रिटिसाइज किया जाता है तब गुस्सा आता होगा। डू यू फील वेरी प्रोटेक्टिव when they say things about her, and or they say okay this song is whatever and it's so easy and there are better singers and all of that, how do you then, मतलब as a protective husband, does that side come out then? नहीं देखो, अगर मेरे सामने अगर कोई ऐसी बात करेगा कि अभी हम आपस में खड़े हो, वो एक अलग सिचुएशन हो जाएगी। अभी कोई कमेंट कर रहा है तो अभी वो पता नहीं किस मूड में बेचारा बैठा हुआ है, वो दुखी है या किस मूड में वो कमेंट कर रहा है, पता नहीं उसको क्या चीज़ वो कर रही है कि वो उसने वो गलत कमेंट किया। और लोगों को शायद पीछे की मेहनत का नहीं पता चलता, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट आ गया, ऐसे हाँ कर दो ना कर दो ठीक है, बट उस प्रोडक्ट बनाने में वो प्रोडक्ट बनाने में कितनी मेहनत लगी है वो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों ने तो ऐसे करके कर देना भी हाँ यार ठीक है, नहीं ठीक चलो आगे चलो। बट जब ऐसी बात कोई नेहू के लिए होती है या कुछ होता है, ठीक है एक तरफ मेरे को बुरा लगता है, बट मेरा फ़र्ज़ है कि उसे मतलब वो उस तक वो चीज़ ना पहुँचे कि वो बुरा फील करे। मैं फिर नहीं यार दफ़ा कर चक के रख, बस तू काम ओके है, गुड है, सब बढ़िया, ये मैं उसे ऐसे चेयर करता हूँ कि मतलब उसके पास वो नेगेटिव वाइब जाए ही ना, क्यों जाए। जब मैं बोल दूंगा अभी ठीक है यार उसने कर दिया कोई चक्कर नहीं, दफ़ा करो मिट्टी पाओ, पर फिर अगला कहता भी ठीक है यार मेरा घर वाला इतना कह रहा है, मेरा फ्रेंड इतना कह रहा है, भी ठीक है। That's called being supportive. That is also wonderful, right? And helps the other person and it also. goes vice versa also. If today he's being so supportive of her, I think she's also very supportive नहीं of वो him. तो बहुत ही सपोर्टिव है। Like, मेरे को जितना वो
चीयर करती हैं, जितना मेरे को सपोर्ट करती हैं, जितना मेरे को वो ग्रो करने में हेल्प करती हैं, मेरे को नहीं लगता किसी ने की होगी। See, that's how a relationship grows. और आपकी जर्नी म्यूजिक वीडियो के एल्बम से हुई है और आप कंटिन्यू कर रहे हो और देखो साथ में यू गॉट अ फैंटास्टिक करियर एंड अ लाइफ पार्टनर। बहुत आई थिंक कम लोग, इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज हिज एल्बम वाज नेहा दा व्या, नेहू दा व्या, हु वुड हैव थॉट, राइट? या और वो गाना नेहू ने खुद लिखा था पहली बार जिंदगी में, और वो गाना जैसा जैसा उन्होंने लिखा वैसा वैसा ही हुआ, एग्जैक्टली वैसा वैसा हुआ हमारे साथ, एग्जैक्टली वैसा वैसा। और लोगों को लगता है कि वो हमारा प्री वेडिंग शूट है, बट वो प्री वेडिंग शूट नहीं है, वो हमने गाना ही शूट किया था, उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट हुई थी हमारी। वैसा हुआ था, which is why when you all did an album together, जहाँ पे you all were posing when she was pregnant, that caused like a furor. the song that. Yeah, how did you handle with that situation? ठीक है, लाइफ है, मस्ती होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ये वो तो एक वीडियो कंसेप्ट था, फिर उसके बाद लोगों को ऐसे ही लगने लग गया, फिर लोगों अब ठीक है चल ही जाता है, अभी पता नहीं 3-4 साल से चल रहा है ये सब कि प्रेग्नेंट नहीं हैगा तो नहीं हैगा, और समझ लो। I think पता क्या हो रहा है, थोड़ा दिमागी, मुझे लगता है वही फोटो बार बार यूज हो रहे हैं। एग्जैक्ट। अच्छा नहीं, आजकल तो फोटोशॉप भी हो जाती है ना। हाँ, AI. आजकल तो बहुत सारी चीजें। Yeah. But because we spoke about AI and other things, मुझे ये जानना है, as a singer and you both as an artist, ये डिबेट हमेशा होता रहता है कि ऑटो ट्यून कितना होना चाहिए। देखो, जितना अच्छा लगता है उतना होना चाहिए। I love इसमें कोई वो बात नहीं है कि ऑटो ट्यून होना नहीं चाहिए। देखो, पहले जो गाने आते थे तब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। अब जो आई है तो हम क्यों ना उसका मतलब, और जो साउंड बेटर करवा रहा है, मेरे को तो लगता है कि एक छोड़ के 2-3 ऑटो ट्यून लगाने चाहिए अगर नीड है उसमें, क्योंकि जब आपके कानों को अगर कोई चीज़ चुभ रही है वो गलत है, जब तक नहीं वो चुभ रही, जब तक अच्छा लग रहा है तो वो क्यों ना होना चाहिए, क्यों ना हो वो चीज़ जी। ऑटो ट्यून लगाना चाहिए सभी, कौन नहीं लगाता। आजकल के ज़माने में लोगों के गाने सुन के, आजकल के गाने सुन के वो कान ही ऐसे बन गए हैं कि ऑटो ट्यून के बिना अगर कोई गाना आएगा तो वो कहेंगे यार ये कैसा गाना कर दिया। वो ऑटो ट्यून अभी कानों में बस चुका है, तो वो अगर नहीं होगा तो फिर बुरा लगेगा। बट ये पहले था नहीं था? नहीं, पुराने समय में नहीं होता था, लेकिन जब से ऑटो ट्यून आया तब से, अभी आज से थोड़ा चल रहा है ऑटो ट्यून, मतलब कब से चल रहा है। क्यों नहीं? You think Sana can be? Next में I think Sana also can sing. With auto tune, with 3 levels of auto tune. With 3 levels of auto tune. आजकल सब गा सकते हैं। Singers AI इतना कमाल हो चुका है, अभी आप अगर कोई बात भी करते हो तो वो क्रिएट कर देता है उसको, आप लिख के भी डाल दोगे ना तो वो खुद कंपोज करके कुछ ना कुछ गाना बना के आपको मेलोडी वो पेश करता है, इतना कमाल हो चुका है। और बट उसी के आई थिंक उसके साथ साथ ये भी है कि व्हेन यू, बिकॉज इंटरनेट है और बिकॉज सोशल मीडिया इतना बूम में है, अगर आप दूसरे एल्बम से इंस्पिरेशन लो, इवन इफ इट्स एन इंस्पिरेशन, इमीडिएटली यू आर सेइंग कि प्लेजराइज्ड है, या एज एन आर्टिस्ट बोथ ऑफ यू, व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट? शुड वी कंटिन्यू टेकिंग इंस्पिरेशंस, डूइंग रीमेक्स ऑफ सॉन्ग्स, और क्या हमको ओरिजिनल पे फोकस करना चाहिए? मेरे को लगता है कि इंस्पायर तो हम सभी किसी ना किसी से होते ही हैं कभी ना कभी, तो जी है ना। वो आप बोल रहे हो कि ये ओरिजिनल बना रहा हूँ, सब कुछ ओरिजिनल ही है, बट कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में है ना कि आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है, अनकॉन्शियसली आपको वो चीज़ पता है कि ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है, तो वो चीज़ें कहीं से हम इंस्पायर होके ही बनाते हैं, बट वो बनाना भी तो मुश्किल है ना, वो हर कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल, जो क्रिएटिव होगा वही बना पाएगा ना। जी बिल्कुल। नहीं तो इंस्पायर तो अभी या तो फिर इंस्पायर होना छोड़ दें हम, वो तो किसी ना किसी से तो इंस्पायर होंगे ही ना, कभी ना कभी तो होंगे इंस्पायर। सो अगर ओरिजिनल वर्सेस रीमेक में कहो, यू आर सेइंग एज लॉन्ग एज इट्स वेल, मतलब जो भी अच्छा ना, जब तक अच्छा लग रहा है, जब तक कानों को अच्छा लग रहा है, देखने को आंखों को अच्छा लग रहा है, तो व्हाई नॉट। व्हाट अबाउट यू सना? सी आई फील आई थिंक हम जितना नया चीज़ को ट्राई करें उतना बेटर। आई वाज वाचिंग द अदर डे कल की फिल्म, because I was missed out on a lot of movies that I haven't seen. I was catching up and I saw that film and it took me to another level. So you know, inspiration वहाँ से मिली जहाँ से मिली, but to doing better is what I think we all want to achieve. So I would say yeah, whether it's music, whether it's film, inspire तो हम हर जगह से होते हैं, हर चीज़ों से होते हैं, but that चाह होती है ना, एक चाह to do better, something better, something better. So I think that should be intact. Sana, after doing a reality show like Big Boss, are you done with like reality shows? What is left, you tell me. You've done Khatro already. Yeah, I did Khatro already, and
Big Boss is the bap of all reality shows. I Correct. feel. को लगता TV, है- actually, I've always been a TV girl. Yeah. I've started my career with television. I've always been a TV TV girl, personality. yeah. So I think regional films भी मैंने किया है. जी. तो मैं अभी अपने आप को एक नई साइड में देखना चाहूँगी. Maybe Bollywood films, maybe OTT. So I think yeah, but Big Boss करने के बाद if there is some good reality show, why not? But Big Boss is the bap of reality shows. I feel. So you won't even do the main Big Boss, not the OTT. I don't know how many of you are aware about it, but I have a condition, okay? So I think for me to stay in that house for a longer period, I don't think it's advisable from the doctors as well. The only concern with the shorter time and the 3 months time was that my doctor also agreed, and that was the risk that I took to come in the show, because the makers were not okay with the fact that, Sana, can you do it? Like they were still hesitating. He, Sana, do you think you should? Sana, do you think you can? So I think I said, you leave it on me. It's 1.5 months. I'm willing to take the risk. So I think we both, but wo 3 mahine wala, why not? But yeah, it did help me. It was a detox thing for me for a lot of this, and I did improve my health, you know, being in the house as well. So I don't know whether 3 months can help me become better. Why not? Maybe. No, I remember because you had mentioned the starvation thing at that time, remember? You had brought it up. So at that time, you had mentioned about your health and all of that. But is that better now? Are you? Oh, it's much better. I went with an improvement, and I was like, yeah, I'll take this 1.5 month ka period as a detox period, and I'll see how am I doing in that 1.5 month. Can it go bad? Can it become better? But coming out of that house, I think it was better, you know. So me and my doctor were very happy, and I'm like, do you think I should do the 3-month thing? He's like, do you want to? And I'm like, okay, let's see. So yeah. Maybe. Maybe What about you? कभी भी I'm बहुत देखो आप तो अभी तो आप खुद ही अब host हो, you know आप and which is interesting. ये तो मुझे जानना है how is it going off the set and when you are on set with your wife and working, तो मुझे उसके बारे में जानना है. But along with that, do you think you can ever do like a reality show? आपका कभी मन होता है कि I'm sure offers तो आते रहेंगे, but you know what do you हाँ think? ऑफर्स आते हैं बट सलाह पता बहुत नहीं ध्यान ना से सुन रहे हैं. नेवर से नेवर भी वाली एक टर्म भी अच्छा, आपने है. बिग बॉस करना? नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा. लेट्स से मतलब तब की तब देखी जाएगी. Like that. हो let's see वाला सीन है. एग्जैक्टली ना तब नहीं क्या है, सीन चल रहा है, completely. तब मेरा क्या Practical. स्टेट ऑफ माइंड क्या है. But working with wife on and off set. ब्लेसिंग. Okay, tell me one really amazing thing that happens when you're working with your wife. मेरे को तो मज़ा आता है, वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है तब कि कैसे भी मतलब अगर कोई एक शॉट हो रहा है कुछ हो रहा है तो उसके सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, पीछे जो लोग खड़े हैं पीछे क्या प्रॉप्स क्या पड़े हैं वो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है. अरे वो तो जीनियस है. मेरे को बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है. अगर आप एक बार उनके साथ शूट पे चले जाओगे ना तो आप खुद बोलोगे कि यार ये बंदी जो आज जिस लेवल पे है ये डिजर्व करती है, इससे होना भी चाहिए इस लेवल पे. It was a whole deal, right? कि नहीं she cries so much and all of that, but Which is a good thing ना. आज के समय पे लोग इतने वो दिखते नहीं हैं. जो बंदा दिल से इतना अच्छा होगा वही कनेक्ट कर पाता दूसरों का But पेन. if you are a sensitive person, Yeah. what's the harm? हाँ. And she's always been that happy-go-lucky person. I've never seen that woman not smiling. I've always seen her, whether it's on screen, it's off screen. That woman always has a smile on her face. बहुत बड़ा दिल है उनका. बहुत. See, of course, I don't know her personally, but मैंने उनको जितना भी देखा है, she's always smiling. Have you ever seen her? I have, and I think she's always positive. You're right. But because you all couldn't explain what Kala Mal really means to you all, I would say if you had to dedicate this song, आप मैंने दोनों को पूछा था शुरुआत में ही. अभी पूरी इंटरव्यू के towards the last 10 minutes, I still have to figure. How would you describe? काला माल बेसिकली जो गाना है उस पे एक लड़की की तारीफ कर रहे हैं. जी बिल्कुल वही तो मैं लड़की चाहती भी लड़का भी और जो कि हर एक लड़की की तारीफ होनी भी चाहिए. तो बेसिकली उसमें लाइंस ऐसी हैं कि जिमें चढ़दे सियाड़ा में रम में चढ़दी, जैसे सर्दी में जैसे रम का नशा होता है, जैसे सुरूर होता है, वैसी लड़की पे हुस्न चढ़ रहा है, वैसी उतनी और ब्यूटीफुल हो रही है वो लड़की. तो ये इट्स ऑल अबाउट मतलब तारीफ. हाँ, लड़कियां बीइंग लड़कियां मतलब कि तारीफ तो कर रहा है, बट मैं फिर और कह रही हूँ मुझे ये भी दिला दे. फिर लड़के का थोड़ा गैंगस्टर वो सीन भी चल रहा है, वो सब चीज चल रही है. So now that you've said that, if you had to dedicate this song, both of you, who would you dedicate this song to? Tareef, if you had to do, besides Sana.
नहीं मैं तो व्याया होया है हाँ तो मैं अपने घर वाले दी करांगा हाँ ओके तो नेहा को ओके हाँ मेरे को एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है जहाँ पे गाने में आती है भी उदण दा तेरा गुड लक चलदा जिद्दण दा बिल्लो तेरा हाथ फड़िया है ना लड़का कहता है कि जिद्दण दा बिल्लो तेरा हाथ लड़की बेसिकली कह रही है भी उस दिन से तेरा गुड लक चल रहा है तो लड़का बोलता है हाँ जिस दिन से मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा How sweet. What about you? You think? Tell me a line that you want to dedicate also, because Ghana, I mean, it's so much and there are so many elements in it. That's why I'm saying, if you want to take a line and dedicate it to someone, who would that be? You also can. I also can. There are so many lines I can dedicate to people. Tell me. Let's hear lines from Kala Mal that you want to dedicate. I think let's begin with the first line, Bikaneri, this, Billi Akhya goes to me. Oh, self-love. I love it. Self-love. Then there is, tomorrow in the town something happened. So that can go to my friends. Okay. 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 Then Ram Chadiya, that's this हाँ. chorus stanza. I think that again goes for me. Okay. Then there is there's this line कि तेरी location क्यों off रहती है. So I think that will go to my my best friend. For women, that's really important. Yeah. हाँ अब जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ अपने मतलब जो Life हस्बैंड partner या या partner. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ही करना जी, जी, अपने बिल्कुल. पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं There's so many lines, and I then there's this one line where I say, listen, you buy me that necklace. Yeah. I tell him. So I think I'll go dedicate that one to my mother. Please buy me a diamond necklace. So there is no life partner dedication happening from There your is. You side. didn't got it only. Tell me which one. I have got, but I want to be specific. He was very specific. No, zip. You said friend. No, I said best friend. Ah, Because Kala Mal can be in a different way. That's what Abhi I aap said. best friends can also be in different ways. that's true. In fact, ये भी खुद कहते हैं अपना partner best friend ही होता है. So it's a thing. I always believe that your partner has to be your best friend. Okay, we'll end on some more fun short questions. Are you guys ready? चक दो Okay. Okay, Sana, are you ready? I'm ready. Let's Okay. go. A rumor about yourself that makes you laugh. ऐसी अफवाह जिसे सुन के आपको हंसी आती है. Recently, I heard me and Elvish getting married. That was. Elvish तो best friend नहीं है दोस्तों. पता नहीं. Oh, I like that. Like पता नहीं. Okay. ऐसी एक अफवाह जिसे सुन के हंसी आती है. हाँ यही जो कहते प्रेग्नेंट है नहीं हूँ प्रेग्नेंट है यही पता नहीं 3 साल से रट लगाई हुई है 3 साल से प्रेगनेंसी चल रही है. इतनी लंबी कौन सी प्रेगनेंसी होती है पता नहीं. Absolutely. Okay. A misconception about you that the world has who don't know you. ऐसी एक चीज जो आपको नहीं जानता है कोई वो आपके बारे में People सोचता think I'm arrogant. There's a difference between being arrogant and there's a difference between not knowing. I mean, if you don't know me, you'll say, "अरे कितनी अकड़ू है, बात नहीं करती है," like that way. But no, I'm not like that. है. But I also feel that because Ranveer had brought it up, it sort of carried on later. But otherwise, I don't know. People still have that misconception. But when you come and you talk to me, I'm very nice. Of course you are. She's very nice. What about you? कि ऐसी कोई चीज ना जो दुनिया आपको जानती नहीं हो आपके बारे में सोचती है. आई थिंक यही था लोगों को शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं रोमांटिक गाने ही गाता हूँ और फिर ऐसा गाना आ गया अभी मैं ऐसा भी गा लेता हूँ वाइब भी है ऐसे फुल मुंडा गैंगस्टर vibe वाइब भी है. Yeah. Okay, that's a good one. Okay. We've already spoken about dedication for Kalamal, but if you had to dedicate a particular music video, you can choose any that you No, want. why any? We are Okay. here to promote Kala Mal. Okay, and dedicate it to one person. Who would that person be? Okay. I think. You'll have to take names. I huh? think I would dedicate this song to Vishal Pandey. Okay. Okay. What about you? No, legit. मैंने पूरे शो में उसको बोला मुझे पैम्पर कर, मेरी तारीफ कर, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे. So I think मैंने पूरा सीजन उसे यही बोला. अरे बेस्ट फ्रेंड था नहीं नहीं. But he is my best friend. But that best friend. यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स के भी लेवल चल रहे हैं आप देख रहे हो. बेस्ट फ्रेंड No, but the only thing is मैं उससे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मांगती हूँ. जी. मैं कहती प्लीज आज मुझे तो कॉम्प्लीमेंट कर, मैं अच्छी लग रही हूँ. जी. तो आई एम दैट पर्सन जो मांग के लेती है. तो आई वांट टू डेडिकेट दैट सॉन्ग कि भाई तू अभी दिल से बोल मुझे काला माल. मुझे लगता है देखो रोहित जी पर रोहित जी हर आदमी आपके तरह होता नहीं है. कभी कोई मांग के कर लेगा. यार सीरियसली जिथे ना मिले उत्थे मांग लेना चाहिए
मैं तो मांगती हाँ, हूँ, मैं तो कहती हूँ प्लीज कॉम्प्लीमेंट, हक आज से मैं अच्छी मांगना लग रही हूँ, चाहिए। व्हाई नॉट? हक से अच्छा मांगना चाहिए। सेम आई नो द आंसर हियर बट बस, यहाँ करो पे बात तो आगे। बात ही खत्म नहीं, अब if भी। not चलो let's not हाँ, skip let's make it if complicated. not Nehu then Then say no कोई भी से हमारा एक्टर्स junior। फ्रॉम द इंडस्ट्री एनीथिंग कैन बी लाइक अ रैंडम किसी की तारीफ कर रहे हो खूबसूरती की, शादीशुदा में तारीफ कर सकता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं फिर तो मैं सारे ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ सारे ਸਾਰੀਆਂ नु कैसे ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ओहो बस सनन ने किया एक नाम कम ऑन ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰੇ को याद मेरी मम्मी ला लो मेरी Oh, nice. Nice, I like He's it. like I know what घर जाना है कलेश नहीं करना मुझे डेडिकेशन आपके साथ इधर मेरी इंटरव्यू के बाद मेरे को घर ही जाना है I know that's why I said कुछ नहीं but she's very secure and Neha she would never I think the mother-in-law is like Neha's mom. yes I like how Sana is like I'll help you in this. Okay, the other one is there are so many actors and artists that you can collaborate with. If there's one music artist that you would love to collaborate with, who would that be and why? Again, Rohan Preet. Okay, lovely. There's one music artist that you want to collaborate with, like a singer or a composer that you would love to collaborate with. Who would that be and why? Wifey. Punjabi artist भी हो सकता है. Wifey. नहीं वाइफी तो ऑब्वियसली Of course. उन्होंने तो मैं कहता ही Brother-in-law, नहीं पर वाइफी के साथ कर चुके हैं ना collaboration. अच्छा, जो somebody new. Yeah, somebody Oh. new because he's already done songs with Neha. ट्रेविस स्कॉट Ooh. That's how if you have to collaborate, aim higher. I love that. Then I want Cardi B. Okay, you want Cardi B? We can manifest it. Why not? Yeah, of course. Okay, if you had to describe your journey in one line, how you describe it and why? Fight harder. I love Just that. one word. Love it. आपको अपनी जर्नी यहाँ की अपनी करियर की जो डिस्क्राइब करनी है आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको? ब्लेस्ड हैप्पीनेस और की करेंगे हाँ मतलब बहुत सारी मैं तो ब्लेस्ड हूँ Blessed हो. टचवुड हाँ I love blessed ही। it. और मेरे को लगता है कि जो भी इस दुनिया में आए वो सारे ब्लेस्ड हैं How sweet. See how adorable the two of them are. Thank you so much for chatting with us. Thank you. It was so much fun. और मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा हिट हो और ट्रेविस स्कॉट तक पहुँच जाए ये गाना ताकि हम वो कोलैबोरेशन भी देख पाए. डेफिनेटली It's wonderful chatting with you, Sana and Rohan Preet. Thank you. so Thank you so much. much for Thank having you. us. थैंक यू